Great. So we'll begin our first topic, or we'll begin our computer as a topic, and coming to the topics which we will be covering during these classes will be like characteristics, history, generations, types, and fundamentals of computers. Okay. So in generally, if you see in might be in your book, history of computer might be the first topic. But before moving to history of computers, I would like to tell you some of the characteristics of computers. Why? Because if we talk about the characteristics of computer, then we'll go back again to the history part of computers and talk that what kind of characteristics were invented or discovered in which generation, or who created all those things. Okay, so we will begin with characteristics of computers. But before we begin with the characteristics, there is a small introduction of Charles Babbage. Without him, we won't be able to get this kind of system or this kind of a computer which we use in today's life, Before Charles Babbage, again there was a concept of computing. I am not saying computer, I am saying computing, which means you have to calculate some numbers, you have to do some mathematical operations on those things like plus, minus, addition and subtraction. जैसे कि बहुत पहले अगर जाते हैं, वी गो टू आदिकाल मीन्स बेबीलोनियन के, तो क्या करते थे कि उनके पास लिखने के लिए भी नहीं होता था, तो दीवार पे उसको खोद के लिखते थे, इनग्रेविंग ऑन वॉल्स, केव वॉल्स. तो उस पॉइंट से हमारा एक तरह से नंबर सिस्टम्स चालू हो गए थे, जहाँ पे हम नंबर्स लिखते थे. लेकिन नंबर्स को वो कैसे करते थे, ऐसे लाइंस बनाते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके लाइंस बनाते थे, फिर उसको काउंट करते थे, या वो चीज़ कंप्लीट हो जाती थी तो उसको क्रॉस करते थे, एक छोटी सी लाइन और टेढ़ी लाइन उस पर काट करके बना देते थे. ओके, तो वो आपकी हिस्ट्री के बुक्स में भी आपको मिलेगा. ओके, और आप अभी जब इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो आपको टैली बार्स भी मिलेंगे. अभी आज तो नहीं, जब हम लोग हिस्ट्री वाला टॉपिक्स पढ़ेंगे तो टैली बार्स हो गया, अबैकस हो गया, तो वो सब चीज़ें भी होंगे. बट चार्ल्स बेबेज, व्हाट ही सेड ओके, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम लोग एक रफ कैलकुलेट मतलब रफ लेवल पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, या कैलकुलेटर जैसी चीज़ है, बट वाई नॉट मेक इट अ प्रोग्रामेबल. सो उनसे पहले भी कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होती थी कॉन्सेप्चुअली, लेकिन उन्हीं ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कहा कि डिवाइस को हम जब प्रोग्रामेबल कर देंगे तो वो एक्चुअल हमारा कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा अच्छे से. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. इफ यू कैन सी his date of birth and when he died, so it was 26 December 1791 to 18th October 1871. So it's more than 100 or 200 years. Okay, when these people were working on such kind of systems. Okay, so सर yes. सर आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा, हमने वीडियो इसलिए ऑफ किया है कि अगर हम वीडियो ऑन कर देंगे तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन दिख रही है वो नहीं आएगी आपको. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? ओके, जस्ट अ मिनट. ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। Good, good, good. Yes, sir. Good, good. Okay, everyone says yes, yes, yes. The screen is clear and also voice. Thank you, sir. Okay. So, start taking notes. We'll start with father of computer. Please put a heading, father of computer, in your notebooks. Those who want to take a screenshot and write it later on, they are free to take to do this kind of methodology also, but do not disturb who are taking notes in between the class. Okay, so note down, Charles Babbage was a famous mathematician comma philosopher comma inventor and mechanical engineer.
and mechanical engineer. Please mute your mics. Okay. And mechanical engineer. Full stop. He oriented the concept. He oriented the concept of programmable computer. Programmable computer. क्लास ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. यही वो लाइन है जो आपको एग्जाम्स में हमेशा बात कहनी है कि वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर. क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम बताया जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, बट उससे पहले भी तो चीज़ें थी. तो यहाँ पे इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया या ओरिएंट किया प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का. अगर आपका प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जैसी चीज़ ना होती तो आपको प्रॉब्लम क्या होती कि आपका कंप्यूटर और या कैलकुलेटर एक ही डिवाइस होती. मीन्स आपके पास सिर्फ एक डिवाइस होती जिसके अंदर से आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर सकते, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं करते. दूसरी चीज़ कि जब तक प्रोग्राम्स को स्टोर करके उसकी फंक्शनैलिटी को बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर का एक्चुअल पर्पस कहीं मेंटेन नहीं होता है. ओके, तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लिएगा. ही ओरिएंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर. Full stop. He is called father of computer. He is called father of computer. Full stop. He was credited with with आवाज नहीं आ रही है. ओके, किसको नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही है. नहीं आ रही है. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक. आवाज नहीं आ रही है. नो सर. नहीं आ रही है. ओके क्लास, एम आई ऑडिबल? सर व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल? थोड़ा यस सर आ रही है आवाज. टूट टूट के आ रही है या साफ आ रही है? सर साफ आ रही है. साफ आ रही है. तो सर, जिनको साफ आ रही है. ओके, सो क्लास जिसको भी ऐसा लग रहा है कि टूट के आ रही है तो बिल्कुल आप बताइए बीच में, बट थोड़ा अपना नेटवर्क को एडजस्ट करिए. सो यू कैन एडजस्ट योर नेटवर्क सेटिंग्स. यू विल स्टार्ट गेटिंग वॉइस क्लियरली. तो थोड़ा सा नेटवर्क पे आपका जो है, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे हो तो कृपया करके उनको बंद कर दीजिए, जैसे गेम्स हो गए या बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ों को थोड़ी देर के लिए ज़्यादा यूज़ ना करें आप. तो नोटिफिकेशंस वगैरह को भी ऑफ कर दें, तो आप ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी. मीन्स कि आपको सेम कनेक्टिविटी पर ज़्यादा बैंडविड्थ मिल जाएगी, तो आपको चीज़ें साफ सुनाई देंगी. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज क्रेडिटेड विद inventing the first mechanical computer. Excuse me. That eventually सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर आपकी Led आवाज to- रुक रुक के आ रही है. आपको रुक रुक के आ रही है बेटा. बाकी लोग को साफ आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. फर्स्ट के सर नहीं आ रही है. नहीं आ रही है. एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन को एक बार ऑफ कर रहा हूँ. ठीक है, सर आवाज क्लियर नहीं जस्ट अ मिनट. आ रही है. सर आ रही. जस्ट अ सर आप मिनट.
ओके, अभी साफ आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. गुड गुड यस सर। गुड गुड. So class, we were on second paragraph. He was credited with inventing the first mechanical computer that eventually led to more complex designs. More complex designs. Full stop. थोड़ा सा पार्ट इसमें हम स्किप करेंगे, उसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही. आगे इसमें लिखेगा ही डिज़ाइंड two distinct types of mechanical computing devices. He designed two distinct means अलग, विभिन्न, एकदम आपस में मेल जोल वाली नहीं. Two distinct types of mechanical computing devices called the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833. In 1833. ओके. सो बच्चों, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं या उस टाइम पे होता था, उस टाइम पे ना तो कंप्यूटर देखने में इस तरह का था जैसा हम लोग आज के डेट में देखते हैं. एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं आज के डेट में, वो एक तो इस तरह की थी भी नहीं. ठीक है. सेकेंडली, जब उन्होंने चीज़ें बनाई तो उसको तब कहते थे इंजन. उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा जाता था इंजन. क्यों कहते थे इंजन? क्योंकि वो उनका जो काम होता था वो एक रूम या एक तरह की चीज़ों के ऊपर बैठ करके नहीं होता था. काफ़ी बड़ी सी एक डिवाइसेस होती थी या काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती थी और हर एक के अंदर कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट होती थी आगे ले जाने के लिए, इसलिए उसको पूरा इंजन कहते थे. उसमें वैल्यूज़ भी इनपुट करने के लिए इस तरह का नहीं था, कीबोर्ड जैसा नहीं था. बहुत बाद में एक चीज़ बनाई गई जो कि आपका टाइपराइटर की मशीन के जैसे था, जिसमें से आप वैल्यूज़ इनपुट करते थे. तो वैल्यूज़ इनपुट करने का भी उसमें तरीका अलग था. तो एक था डिफरेंस इंजन जो एक पर्टिकुलर तरह का काम करता था, कुछ चीज़ों के डिफरेंसेस निकालने के लिए. कोई दो तरह की वैल्यूज़ दी जाती थी तो उनके डिफरेंसेस करने के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता था. उसके बाद उन्होंने 10 साल 11 साल बाद एक और इंजन बनाया, मीन्स एक और कंप्यूटर बनाया, जिसको नाम दिया उन्होंने एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन क्या चीज़ होती है? वो डिवाइस होती है या वो तरह की चीज़ हो गई जिसके ज़रिए से आप कोई दो या एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में एनालिसिस कर सकें. मीन्स आपके पास में एक सेब रखा हुआ है और एक अमरूद रखा हुआ है. अब आपसे कहा गया कि दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं लेकिन एनालिटिकल टर्म्स में. तो आप एनालिटिकल टर्म्स में जब आप बात करेंगे तो आप कहें कि भाई ये सो एंड सो जगह पे पैदा होता है, ये सो एंड सो जगह पे पैदा होता है. तो आप बात तो कर रहे हैं डिफरेंसेस की, लेकिन क्या कर रहे हैं? आप फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं. आप उसमें बता रहे हैं कि इसमें इतने तरह के मिनरल्स होते हैं, इसमें इतने तरह के मिनरल्स होते हैं, इसको खाने से ये फ़ायदा, इसको खाने से ये फ़ायदा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो उसको कहते हैं एनालिसिस या एनालिटिकल. ओके. Moving to next slide. Moving to our next slide. You can write down what is computer.
put a heading, what is computer, and write down the full form of computer. So you can see on your left hand side of your screen, there is a full form written: commonly operating machine practically used for training, education and research purposes. And one more thing, you can tilt your phone so that you can get better result on your screen rather than holding it straight on your palm. सीधा सीधा रखने की बजाय आप उसको बेड़ा करिए, अपने फ़ोन का रोटेट ऑप्शन ऑन कर लिए तो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ लोग को छोटी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर वो कंफर्टेबल है छोटी स्क्रीन के साथ तो ठीक है, नहीं तो आपकी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा सेम प्रेजेंटेशन, तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, साफ साफ दिखेगा और ज़्यादा बेटर तरीके से। ओके, सो नोट डाउन द फुल फॉर्म: कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन practically used for training, education and research purposes. This one. Note कर लिया? Have you noted down? No, sir. No, Okay. sir. Yes, sir. Okay, okay, no issue, no issue. आप लोग नोट कर लिए। Meanwhile, I'll explain it कि ये कंप्यूटर की कोई आपकी एज सच डेफिनेशन नहीं है। जो जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो इस तरह की कोई भी इस तरह की डेफिनेशन नहीं थी, विच यू आर लुकिंग राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। क्यों नहीं थी? क्योंकि कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट से, COMPUTE, कंप्यूट से आया है, और कंप्यूट का मतलब होता है यस सर यस सर ये जो कॉमन बस यही लिखना है, जो बगल में कंप्यूटर अभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, डिवाइस ये बस भी लिखना है। इतना अभी लिखिए, उसको जब हम अभी डिक्टेट करेंगे तो हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ओके, तो आप रादर देन बहुत ज़्यादा लिखने के ऊपर फोकस से आप सुनने पे भी ध्यान दीजिए, समझने पे भी ध्यान दीजिए। ओके, सो द टर्म कंप्यूटर केम फ्रॉम कंप्यूट शब्द, कंप्यूट वर्ड, COMPUTE, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ही होता है कैलकुलेट करना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितने तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब आते हैं कंप्यूट के अंडर में। तो वो काम करने के लिए जो मशीन बनाई गई उसको कहते थे कंप्यूटर। मीन्स कि एक तरह का कैलकुलेटर कह लीजिए बनाया गया था, बट उसको आज की डेट में ब्रेक कर दिया गया है ताकि लोग उसको ज़्यादा आसानी से समझ सके कि ये होता क्या है। सो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन बहुत ज़्यादा या हर जगह आज की डेट में फील्ड में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर, जिसको कि आप इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पसेस। ट्रेनिंग देनी हो, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक तरह की एजुकेशन हो गई, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च हो गई, ठीक है। ट्रेनिंग में आप सिमुलेशन भी आप समझ सकते हैं। सिमुलेशन क्या होता है आपका, सपोज क्या कि जो पायलट्स होते हैं, तो पायलट्स को शुरू में तो दिया नहीं जाता है एयरक्राफ्ट, फ्लाइट तो दी नहीं जाती है, तो उनको जो दिया जाता है वो एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसके अंदर बैठ करके वो सारी सेटिंग्स करते हैं कि भाई फ़्लाइट कैसे उड़ेगी, क्या होगा। तो एक तरह का सिमुलेशन या सिमुलेटर होता है, वो आपका ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं सिमुलेशन के लिए। उसी तरह से आपका सपोज़ कोई मशीन बननी है तो उस मशीन को बनाने से पहले उसका सिमुलेशन किया जाता है। या जैसे मकान का नक्शा होता है, मकान का नक्शा जब बनता है तो उसका सामने से कैसा दिखेगा, अंदर से कैसा दिखेगा, तो वो एक एलिवेशन बनता है। उसको उस टेक्निकल मतलब सिविल इंजीनियर के टर्म्स में कहते हैं एलिवेशन, तो वो बनाते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया। एजुकेशन मीन्स कि हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपना जैसे प्रोग्राम उसके अंदर लिखते हैं और उसको जो है रिज़ल्ट उसका आएगा, फिर उसको चेंज करेंगे, वो सब हो गया। रिसर्चेस हो गई, सपोज़ क्या कि आपके पास कुछ केमिकल्स हैं, आपके पास उनकी रीडिंग्स हैं कि भाई ये केमिकल्स हैं, इनकी ये रीडिंग्स हैं। अब इसके आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने हैं। आपको प्रैक्टिकली तो आता है, बट आपको कुछ नए तरह के बीच में केमिकल्स दिए गए और
आपसे कहा गया कि इसको जल्दी से करना है, आपके पास टाइम का क्रंच है, तो आपको क्या करना होता है कि उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को सिस्टम में फीड करना होता है और एक प्रोग्राम लिखना होता है जो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करे कि अगर ये केमिकल इस केमिकल के साथ में इतनी क्वांटिटी में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और जो बनेगा वो फर्दर अगर किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल करके सिस्टम आपको दे देता है, इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग योर मैनी आवर्स, काफ़ी घंटे लगा के ये जल्दी कर देता है सिस्टम। ओके ओके, सो इसकी डेफिनेशन में, ये तो फुल फॉर्म हो गया, इसकी डेफिनेशन में लिखिएगा, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that executes certain actions through user based commands, keep in mind user based commands. When we talk about user based command, we will be referring to some IPO cycle, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। IPO साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम कंप्यूटर को जब तक कुछ वैल्यूज़ नहीं देंगे, कुछ इनपुट नहीं देंगे, वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग नहीं करेगा और कोई रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। कंप्यूटर रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा, कुछ ही काम का नहीं है तब तक जब तक आप उस पर कुछ काम ना करें। काम में क्या करेंगे आप, उसको कुछ काम करने के लिए कहेंगे, कीबोर्ड से के ज़रिए, माउस के ज़रिए, माइक्रोफोन के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए आप उसे कुछ ना कुछ बताएंगे करने के लिए, या कोई गेमिंग डिवाइस जुड़ी है उसके ज़रिए, किसी भी तरह से। ओके, फुल स्टॉप। इट टेक्स रॉ डेटा as input, comma, processes these data under the control of set of instructions called program. Comma, gives the result and within bracket note down output after bracket, and can saves the output for future use. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस अलग चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलग होती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस में आपका अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी चीज़ें हो गई, आपका मोबाइल हो गया, ओके, आपका कंप्यूटर हो गया, इसके अलावा आपका जो सेट टॉप बॉक्स होता है ना, जैसे कि टाटा स्काई हो गया या वीडियोकॉन D2H हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस आपकी क्या हुई, आयरन हुआ, मीन्स जिसके ज़रिए से आप प्रेस करते हैं कपड़ों पे, वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है।
आपकी वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मिक्सर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ओके। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यस, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो जाएगी, ओके। क्योंकि इसका उसको तो सिर्फ पावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से, बाकी तो इसका अपना काम करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली करता है। जब बात इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की आती है तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं एम्बेडेड, और जो इलेक्ट्रिक चीज़ होती है वो सिर्फ पावर पे चलती है। ऑन किया गर्म हो गई, ऑन किया बटन दबाया चलने लगी, ये चीज़ होती है उसमें, ओके। चलिए, ये हो गया आपका। सेकेंडली, कंप्यूटर हमेशा काम करता है आपका आईपीओ साइकिल पे, विच टेक्स रॉ डेटा, मीन्स कि आप जो भी इनपुट देंगे उसको प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट दे देगा। आप जो भी वैल्यूज़ देंगे, सपोज आपने कुछ भी अल्लम गल्लम टाइप कर दिया, सपोज वट एवर यू हैव टाइप्ड थ्रू योर कीबोर्ड और क्लिक्ड सेवरल टाइम्स समवेयर ऑन योर स्क्रीन, तो अगर कंप्यूटर को नहीं मालूम या फिर वो तरीका नहीं है सही, तो वो आपको उसी तरह से गलत रिजल्ट ही देगा। तो सही रिजल्ट के लिए सही वैल्यूज़ हमको इनपुट करनी है। थर्ड थिंग, कंप्यूटर के ज़रिए से किया गया कोई भी रिजल्ट इन जनरली हम वो रिजल्ट सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सपोज आपके पास में बहुत सारे केमिकल्स हैं और आपको कहा गया कि कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस के लिए क्या किया आपने? पहले आपने उन केमिकल्स की वैल्यूज़ तो निकाली, मीन्स कि उनके रीडिंग्स निकाली, कौन सा किस तरह का है। फिर उनको स्टोर किया कि ये केमिकल है, ये इस तरह का है, इन पैरामीटर्स पे इस तरह का है, कलर उसका ऐसा होता है, ऑडर उसका ऐसा होता है, टेस्ट उसका ऐसा होता है, स्मेल उसकी ऐसी होती है, ठीक है। तो आपने एक केमिकल के बारे में इतनी चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद उसका अंदर जो है कुछ एटॉमिक वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी, फिर दूसरे की लिखी, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। मीन्स कि आपने किसी और चीज़ को करने के लिए पहले कोई और चीज़ का आउटपुट निकाला, फिर वो आउटपुट को एज अ इनपुट यूज़ किया किसी और रिजल्ट के लिए। तो ये चीज़ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली करता चला जाएगा, ओके। Next is characteristics of computers. So please note down the heading characteristics of computers. It's 1:06, but we will finish in next 10-15 minutes. Okay. So there are several characteristics. If you go by the book, you might not see automation as a part of characteristics, but characteristics जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये characteristics इसके अंदर और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम आए कि एक्यूरेसी characteristics का पार्ट ही ना हो, मीन्स कि मान के चलेंगे कि ये तो यार इसके अंदर है ही है, स्पीड तो है ही है, डिलीजेंसी तो है ही है, तो 3 चीज़ें हट जाएंगी, 3 नई चीज़ें आ जाएंगी फ्यूचर में। फ्यूचर मीन्स कि डाउन द लाइन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, कुछ भी कह सकते हैं, ओके। बिकॉज अगर आप पुरानी हिस्ट्रीज को भी देखेंगे तो बहुत पहले की चीज़ों में से अभी तक में बहुत फ़र्क हो चुका है, इसीलिए बहुत पुरानी कंप्यूटर्स की बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है टिल द टाइम आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं पढ़ना चाह रहे, मीन्स क्या कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि भाई उसमें कैसे बना था, क्या क्या लगा था, वो नहीं पढ़ना चाहते, वो ज़्यादा काम की है भी नहीं आपके, ओके। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्लीज पुट डाउन द हेडिंग स्पीड। स्पीड, so if you talk about speed, computer can calculate or perform operations on very high speed. So what is speed? It is being measured in hertz or milliseconds. कि कितना मिलीसेकेंड्स में काम करता है एक कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा करता है। अभी लिखना है, अभी बताते हैं, ओके। तो ये आपकी जो स्पीड है ये डिपेंड कर, लिखना है,
ओके, यस, नोट करना है। स्पीड आपकी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे क्या कि आपके कुछ फैक्टर्स हो गए कि किस तरह का प्रोसेसर लगा हुआ है कंप्यूटर का। जो मेन इंजन, जैसे कार होती है या बाइक हो गई सपोज, आप चलिए बाइक की बात करते हैं या फिर किसी और चीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइक का सपोज इंजन, बाइक का इंजन सपोज एक पर्टिकुलर सीसी का लगा है, मीन्स कि कितनी स्पीड का लगा है। सपोज हमने कहा 150 सीसी का या 200 सीसी का लगा है, ओके। तो उसकी एक स्पीड है, बट सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा। स्पीड के साथ जब हम बाइक को बताते हैं कि हाँ अब हमको गियर चेंज करना है या अब हमको और तेज़ भागना है, तो वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है। मतलब हमने उसका एक्सेलेरेटर लिया और सट से भागी, तो वो जितना तेज़ी से हम ये करेंगे उतना तेज़ी से अगर भाग रही है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा है कि हमने उसको खींचा और आराम आराम से बढ़ रही है, तो उसका मतलब उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। इंजन तो 150 सीसी का लगा, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। तीसरी चीज़ कि जो उसकी बॉडी है, उसके एरोडायनेमिक्स क्या है। हो सकता है कि सामने बड़ा सा शीशा लगा के चल रहे हो, तो वो एयर को रोकेगा। जब रोकेगा तो ट्रैक्शन होगा। ट्रैक्शन होगा मीन्स कि एक तरह से हमको हवा के सामने फंस रहे हैं। अगर वहीं पे स्लीक होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा बना हुआ, तो वो एयर को काटता हुआ जाएगा, उसको कहते हैं एरोडायनेमिक्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जैसे एक बाइक के। उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्पीड के, जैसे उसका इंजन जो कि होता है मेनली प्रोसेसर। दूसरा उसकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि स्टोर करके रखती है वैल्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जल्दी काम हो सके। और तीसरा आपका स्पेस ऑन हार्ड डिस्क या टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, अगर आप कुछ कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे हैं। अगर तीनों में कोई चीज़ आगे पीछे है तो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ओके, सेकेंडली जैसे कि बाइक होती है, बाइक के अंदर साइलेंसर लगा होता है ताकि उसकी हीट और पॉल्यूशन को पीछे निकाल के फेंके, और मेनली हीट वगैरह के लिए भी होता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी आपकी बाकी चीज़ें सही हैं, लेकिन हीट को मेंटेन करने वाली चीज़, जैसे उसके जो फ़ैन होते हैं, हीट सिंक होता है, एक डिवाइस, एक चिप तो नहीं कहेंगे, प्लेट लगी होती है जो उसको ठंडा करती रहती बार बार। तो अगर वो ख़राब हो गई तो आपका थोड़ी देर तो चलेगा, उसके बाद गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाता है तो कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। ओके, सो क्लास प्लीज़ नोट डाउन, a computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculations. ओके, फुल स्टॉप। आप में से कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ ह्यूमंस भी होते हैं। जैसे सपोज रिसेंटली एक मूवी आई थी, एक्चुअली बहुत पहले की एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। शकुंतला देवी जी थी जिन्होंने एक सुपर कंप्यूटर को हराया था कैलकुलेशंस में, कुछ सेकंड्स के, करीब 10 सेकंड्स के डिफरेंस पे था। तो उन्हीं ने सेम कैलकुलेशंस जल्दी किया था, और वो उस टाइम का जो कंप्यूटर था कैलकुलेशंस के लिए जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माने जाता था, उसने बाद में रिजल्ट दिया था। तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ। तो अभी जो रिसेंटली मूवी भी आई थी वो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड थी, बट वो वंस इन अ मिलियन, मतलब ऐसा कोई एक ही इंसान हो सकता है जो इतना तेज़ करे। दूसरी चीज़ कि उस वक्त के कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर के कैलकुलेशंस की स्पीड भी बहुत फ़र्क हो गई है। तब वो कैलकुलेट करता था, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करता था, फिर उसको प्रिंट करता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर कैलकुलेट करता था, फिर प्रिंट करता था। तो वो एक अलग प्रोसेस था, मीन्स उसमें कुछ मैकेनिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व थी।
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें नहीं थी, मैकेनिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व थी। ओके, फुल स्टॉप। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस, कंप्यूटर कैन प्रोसेस। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, आप सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको आप नोट कर लीजिए, हम यही अभी बोल रहे हैं। कंप्यूटर कैन प्रोसेस, सर हो गया। गुड गुड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक कंप्यूटर कई सारे इंस्ट्रक्शंस, मिलियन मीन्स की 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख इंस्ट्रक्शंस मीन्स कि अगर हमसे कहा गया कि x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, और इसका कैलकुलेशन हमको कहा कि 5 + 10, हमने कहा 15, हमको ये करने में ही 1 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से जोड़ के 1 सेकेंड में आंसर बता दे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, इस तरह के कैलकुलेशंस मिलियंस, मतलब आप 10-10 लाख कैलकुलेशंस आप उसको दे दीजिए एक बार में, वो 1 सेकेंड के अंदर करके आपको रिजल्ट दे देगा। फुल स्टॉप। टाइम टेकन बाय कंप्यूटर्स, टाइम टेकन बाय कंप्यूटर्स for their operations is micro and nanoseconds, मतलब इतने माइन्यूट लेवल तक के उसका टाइम को कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितना तेज काम करेगा, तो माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, इस तरह पे वो काम करेगा। फुल स्टॉप। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेसर की स्पीड की, तो अभी हमारे पास क्या सबसे लेटेस्ट है आज की डेट में। So latest processor launched by Intel Corporation, सर हो गया। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. यस गुड सर। गुड गुड गुड। सो अभी हम Yes, sir. गुड, तो i9 करके एक प्रोसेसर है आपका, होते हैं i3 होता है, i5 होता है, i7, i9, जो कि 10th जनरेशन के। जनरेशन मीन्स क्या कि जैसे सर कहते आवाज हैं क्लियर कि नहीं आ रही। अभी आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे कि आप लोग के पास में सपोज आपके पास घर, आप लोग कार देखते हैं, जैसे ऑल्टो ही कार एक है, तो ऑल्टो पहले आई, फिर वही ऑल्टो दोबारा आई, तो क्या हुआ कि उसमें कुछ बदलाव करेगा, थोड़ा बहुत स्पीड, उसकी माइलेज, उसके लुक्स। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो प्रोसेसर होते हैं वो उनकी भी जनरेशन होती है। तो अभी जो हम लोग जिस जनरेशन को यूज़ कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर की, कंप्यूटर की नहीं, वो है 10th जनरेशन। ओके, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ तक का सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर ही जाता है, जबकि अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर देखें तो 2 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास रहते हैं। तो देयर इज़ अ बिग जंप, बहुत बड़ा जंप है, 2 या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से सीधे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। कुछ कंप्यूटर होते हैं जो बूस्ट करके 3 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं। ओके, इंटेल कंपनी ने बनाया है इंटेल का i9 इस तरह का प्रोसेसर, राइजन कंपनी जो राइजन 5 जो कि AMD कंपनी ने बनाया। नेक्स्ट टॉपिक इज, जस्ट अ मिनट, एक्यूरेसी। पुट a heading accuracy. We will cover accuracy till accuracy, and the rest of the part we will cover tomorrow in next class. Okay, so note down, in addition to being fast, computers are also accurate. In addition to being fast, computers are also accurate. Errors, full stop, errors that may occur can almost always be attributed to human error, to human error। ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा inaccurate data,
comma poorly designed system, सर इन्हें और- एक्यूरेट डेटा के बाद comma poorly designed system or faulty instructions programs written by the programmer, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट बंद कर देंगे. ओके, एक्यूरेसी. सो क्लास एक्यूरेसी के ऊपर हम लोग बस बात कर लेते हैं 2 मिनट. व्हाट एक्यूरेसी मीन्स कि देखिए फास्ट तो होता है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है. सेम टाइम पे फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है. गलती कहाँ पे करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर गलती एक्चुअली नहीं करता है. कहते हैं कि कंप्यूटर गलती नहीं करता है, गलती इंसान करता है. कैसे इंसान करता है गलती? या तो जब उसको वैल्यूज दे रहा होता है तो इनएक्यूरेट डेटा देता है, मीन्स कि उसको सही वैल्यू नहीं दे पाता है, तो वो गलत करेगा. या जैसे कि जिस कंप्यूटर पे या जिस सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में ही कोई फ्लॉ है या उसका प्रोग्राम ही गलत तरीके से या कुछ कहीं पे कुछ एरर है, बग है, तो भी वो कहीं ना कहीं जा कर के हमको एरर देगा. ओके, इस तरह की चीज़ों को इसीलिए हम लोग कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO. कंप्यूटर के अंदर आप कचरा डालेंगे तो आपको रिजल्ट में कचरा ही मिलेगा. सही वैल्यू डालेंगे तो सही सही से कैलकुलेट करके देगा. ओके, so class will meet tomorrow same time 12:30. In case there is a change in time, okay, we will let you know.